A very good afternoon to all of you. Well, friends, first of all, I thank the ACAE for inviting me to this conference. And I was there in the first two sessions, so we got an introduction of what is in store in the future, Digital Future 4.0. So I would be talking about certain AI tools, certain areas which you can use to enhance your practice. Now, before I start, I'll just ask a few questions. We'll try to keep it a bit interactive. खाली मैं ही बोलूं और आप लोग ना बोलें तो ठीक नहीं होता. Everybody, because I may have an idea, you may have an idea. दोनों मिलके दो idea हो जाते हैं. किसी का कुछ जाता नहीं. You add on the ideas. So, how many of you have used AI for the profession? How many of you actively use it? Actively use it में I would say what happens today, आज की तारीख में क्या हो रहा है कि just to generate a reply. So उसको एक बार किनारे कर दें. That's probably the simplest part कि एक letter draft कर दो, एक ये कर दो. That's probably the simplest you can. So apart from that, how many of you used? अच्छा, how many of you have never used AI? 1, 2. अच्छा, वो होता क्या है, मेरी एज ग्रुप के टाइप के लोग हैं आप सब लोग जो ये कहते हैं कि मेरी तो हो गई, अब why should I learn something new? Why should I try it out? हमने तो 20 साल, 30 साल, 40 साल प्रोफेशन में लगा दिए. Why should I change myself? This is something which is very natural. I don't want to be redundant from my mind. That is why I don't use AI. अच्छा sir, very good point which you have raised कि I don't want to be redundant. When I started my practice, somewhere around about in say 87, 88 में जब मैंने practice शुरू करी तो एक ही काम होता था. एक ही काम होता था, काशी भैया भी बैठे हैं ये भी बताएंगे. एक ही काम होता था, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए तो समझो ऑडिट डन. एग्रीड सर? यही होता था. एक ट्रायल बैलेंस आता था अनटैलीड, हम लोगों का काम होता था पोस्टिंग करना, कास्टिंग करना. पोस्टिंग मतलब फॉर न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे मस्ट बी थिंकिंग क्या बात क्या कर रहे हैं. व्हाट इज पोस्टिंग? व्हाट इज एन अनटैलीड ट्रायल बैलेंस? बट दैट वाज द ओनली जॉब. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते ही नहीं थे, हमने कभी पढ़े ही नहीं, कोर्स में ही नहीं थे. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि ट्रायल बैलेंस आया, मैनुअली बैठ के टोटल कर रहे हैं, टोटल टैली किया, लेजर से कैश बुक में पोस्टिंग करी, कैश बुक से लेजर में, जर्नल से लेजर में, और टैली किया. देन केम अ मैजिकल गैजेट विच वाज कॉल्ड कैलकुलेटर. तो लोगों ने यही कहा, कैलकुलेटर मत यूज करना, दिमाग काम करना बंद कर देगा. यू विल फॉरगेट हाउ टू टोटल. डिड दैट हैपन? Yes, sir. सर सर Calculate, which I could do then, I can't do now. Sir, is it important? Are you made for only just checking the total or calculating it? Can't you do better things? Matlab, you may have a merit. I'm just giving you a different perspective. But calculators came to stay. Nobody could avoid it. उसके बाद एक और बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, एक मशीन आई जिसको कंप्यूटर कहते थे. बिग कंप्यूटर. एंड कंप्यूटर आया, वहां तक तो ठीक था. सॉफ्टवेयर आए इनकम टैक्स रिटर्न बनाने के. एवरीबडी सेड ये तो कभी करना ही मत, कंप्यूटेशन हाथ से बना ही नहीं पाओगे. पहले हम लोग 234 एबीसी का इंटरेस्ट अपने आप कैलकुलेट कर लेते थे. नाउ कैन यू डू दैट? यू कांट डू. बट इज इट इंपॉर्टेंट? अगर मशीन करके दे रही है और मैं अपना वही टाइम जो एक 15 मिनट लगाता था वो किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगा लूं, isn't it better? So the computers and the software came to stay. Again, now today AI has come. People are saying AI मत यूज करना, बिल्कुल ही दिमाग काम करना बंद कर दे, चिट्ठी लिखना भी भूल जाओगे. But again, is that important? What is happening is the repetitive tasks, the less important tasks are getting shifted to machines. आज भी अगर आप AI से लेटर लिखवाते हो, रिप्लाई लिखवाते,
Can you do without reading that reply? How many of you are using it for reply writing? Now, is it essential that you have to read each and every line? Yes. So, हमारी वो रिप्लाई लिखने की हैबिट हो सकता है खत्म हो जाए, बट रिप्लाई समझने की हैबिट खत्म नहीं होगी. Why do we have to read it? Because it may give absurd sort of letters. It may generate. It is a generative AI. What is AI? It is generative. Okay. Well, थोड़ा सा पहले आ गए थे. Let's go to something. What's happening? क्या एक्चुअली हो रहा है? टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे वी फंक्शन. हमारे फंक्शंस को चेंज नहीं किया, द वे थिंग्स आर डन. आज 10 साल पहले टीवी कैसे बिकता था, मोबाइल कैसे बिकता था? हम शॉप में जाते थे और खरीद. बट व्हाट इज हैपनिंग टुडे? वी मे स्टिल गो टू द शॉप, बट पहले सारी रिसर्च कर चुके होते हैं. वो कंपेयर इंडिया एंड सो मेनी साइट से फीचर्स तक मालूम होते हैं हमको. सो व्हाट इज हैपनिंग? द वे बिजनेसेस आर डन इज बीइंग चेंज्ड. पहले रेस्टोरेंट जाते थे हम, अब क्या होता है? अब रेस्टोरेंट हमारे घर पे आ जाता है. जोमैटो से आपको एक रेस्टोरेंट से कुछ मंगाना है, दूसरे से कुछ मंगाना है, वो भी पॉसिबल हो गया है. व्हाट इज ब्लिंकिट डूइंग? ज़ेप्टो क्या कर रहे हैं? They are changing the way business is being done. What is Ola doing? Uber, Ola. क्या एक भी टैक्सी है इनके पास? एक भी टैक्सी नहीं है. मेक माई ट्रिप क्या एयरलाइंस ओन करते हैं? सारी टिकटिंग उधर से ही होती है. सो टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग व्हाट वी डू, हाउ वी डू, व्हेन वी डू एंड वेयर वी डू. ये सब कुछ टेक्नोलॉजी बदल रहा है. एंड दिस इज बिकॉज, जैसा कि पहले सेशन में भी कहा, बिकॉज द स्टोरेज. पहले ये डाटा स्टोर ही नहीं कर पाते थे हम, अब जरा सी जगह में हो जाए. पहले के कंप्यूटर इतने बड़े थे, अब क्या है, एक सिंपल फोन में कैमरा भी वही है, हमारी घड़ी भी वही है, फोन भी वही है और कंप्यूटर भी वही है. दिस इज व्हाट इज हैपेंड. द सेंसर्स एंड द कनेक्टिविटी. 1956 से 2020 तक देखे तो दिस इज हाउ द साइजेस हैव ड्रास्टिकली गॉन डाउन. ओवर द लास्ट 25 years प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नई नई क्रिएट हुई हैं. एग्जिस्टिंग कंपनीज हैव नॉट डन. नाउ व्हाट इज एआई? एआई इज बेसिकली अ कंप्यूटर सिस्टम केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क्स दैट जनरली ह्यूमंस कैन डू. जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है वैसी ही टास्क, और ह्यूमन लैंग्वेज को समझ के जो कर सकता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यही है. एक मशीन में ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज अगर आप बिल्ड कर दीजिए तो इट बिकम्स अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा. दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स विच आर यूज्ड एवरी डे. हम करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू यूज इट नियरली डेली? क्यों? अरे एयरपोर्ट भी जाना है, स्टेशन भी जाना है, तो कम से कम देख लो पहले से टाइम कितना लगेगा. एंड इट इज नॉर्मली वेरी वेरी एक्यूरेट. अगर आपने स्टार्ट किया, इवन इफ इट इज अ 5-hour जर्नी, एंड यू व्हेन यू स्टार्ट यू पुट इट एंड वो बता देता है योर रीचिंग टाइम इज दिस, एंड यू रीच 5-10 minutes अप एंड डाउन एज पर दैट टाइम. दिस इज द एक्यूरेसी. नाउ व्हाट इज चेंज्ड? क्या हो क्या रहा है? मशीन में क्या होता है? लॉजिक, रीजनिंग, ऑप्टिमाइजेशन, प्रोबेबिलिटी एंड मशीन लर्निंग. दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंस. So I'll show you actually how it happens. Now, let us take a small example कि ये मशीन कैसे सीखती है और कैसे हमको रिप्लाई करती है. Now suppose एक डॉग है और एक कैट है. एक मशीन को बताना है कि what is a dog and what is a cat. I will give the machine an image and it will have to identify and tell me. So how does this machine work? सबसे पहले मशीन क्या देखती है? Something white in color, pointed ears, cat. ब्लैक इन कलर, राउंड ईयर्स, डॉग. फिर क्या हुआ? ये हमारे पास और इमेजेस आ गई.
डॉग की और कैट की. तो इट हैज प्लॉटेड दीज इमेजेस, एक डिवाइडिंग लाइन क्रिएट करी. इस तरह का जो भी इमेज आएगी उसको कैट बता देंगे और दूसरी तरह की इमेज आएगी उसकी डॉग बता देंगे. दिस इज हाउ मशीन वर्क्स. देन व्हाट हैपेंस, एक ये क्रीचर आ गया. नाउ व्हाट हैपेंस, कोई बात नहीं, आ गया, इसको यहां प्लॉट किया, ठीक है. फिर एक ऐसा और आ गया. तो नाउ अगेन दिस इज प्लॉटेड. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज, जितनी पॉसिबल डॉग्स और कैट्स, जितनी भी रिकॉग्नाइजेबल इमेजेस हैं, वो सब हमने इकट्ठा करी और उन सबको कहीं ना कहीं प्लॉट कर दिया. एंड इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक कर्व टाइप की लाइन से डिवाइड कर दिया. नाउ इमेजिन अगर हमने सारी इमेजेस ऑफ अ डॉग और अ कैट दे दी, प्लस थोड़ी सी मशीन को इंटेलिजेंस दे दी कि इट लर्न्स बाय इटसेल्फ. एक गलती करी तो बताया, उसने करेक्ट किया. व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग a dog and a cat based on the voluminous data which it has. And why is this possible? This is possible because of, again, the amount of data which it can store, the speed at which it can retrieve, and the sensors which it has. पहले क्या दिक्कत थी? स्पीड ही नहीं थी. डाटा था, वो स्टोर करने की जगह ही नहीं थी. टुडे इन द फर्स्ट सेशन वो बता ही रहे थे स्पीड क्या, व्हाट आर द स्पीड्स अवेलेबल. टुडे wherever you are always connected to the net. So this is how artificial intelligence works. Computing power, memory, and the connectivity. These are the three important things which are there. Now we come to something which probably everybody knows. चैट जीपीटी. अब तो शायद ही कोई जन, बट वाई ये चैट जीपीटी इतना पॉपुलर कैसे हो गया? व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाई? वेल, वी कैन सी नेटफ्लिक्स जैसी चीज जो कि काफी पॉपुलर है, इट टुक 3.5 years टू रीच 1 million यूजर्स. ड्रॉपबॉक्स 7 महीने लगे, इंस्टाग्राम 2.5 महीने लगे, फेसबुक टुक 10 months, बट चैट जीपीटी टुक जस्ट 5 days. 5 days में it reached 1 million users. So if something gets popular in such a short span of time, what is going to happen? It will become the talk of the world, which actually happened. इसीलिए इतनी जल्दी पॉपुलर होने की वजह से what actually happened, everybody knows कि चैट जीपीटी कुछ है. How many of you have not used ChatGPT कभी भी? सर नहीं किया. सर, what I would request, आपको जो भी सवाल हो जरूर पूछिए, बट आफ्टर दिस सेशन एक बार शुरू करके देखिए, क्योंकि what actually is going to happen, ऐसा नहीं है कि अगर आप AI यूज नहीं करेंगे तो वर्ल्ड कहीं चली जाएगी, आपको कुछ हो जाएगा. बट अगेन, just imagine, how will you be able to compete with somebody who is using AI and if you're not using AI? जो इतनी जल्दी चीजों को कंप्यूट कर लेगा और आप नहीं करोगे तो क्या होगा? Now, I'll park this slide for some time और कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं. अब हुआ क्या, काशी खंडेलवाल जी बैठे हुए हैं, काफी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, काउंसिल में भी रह चुके हैं. ये कैलकाटा से दिल्ली जा रहे थे. एयरपोर्ट पे इनको एक क्लाइंट मिला. एक क्लाइंट क्या, एक बिजनेसमैन मिला जिसकी एक केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी. नाउ बात होती रही, उसने कहा कि मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है, मेरी यूनिट में कुछ मुझे लगता है ठीक नहीं चल रहा. आई वॉन्ट एन इंटरनल ऑडिट ऑफ माई यूनिट टू बी डन. तो आप करोगे? तो काशी भैया बोले कि हमारे पास तो बहुत सारे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मैं करूं. तो उसने कहा ओके, प्लीज सेंड मी अ प्रपोजल. नाउ फ्रेंड्स, एक्चुअली टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन.
हम सब लोग शायद प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सबकी छोटी छोटी फर्म है, किसी के यहाँ एक पार्टनर है, किसी के यहाँ दो पार्टनर, ऐसा ही मेरे ख्याल सेटअप होगा, किसी के यहाँ तीन होंगे. नाउ व्हाट विल हैपन इफ दिस एक्चुअली टेक्स प्लेस? वेल, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आधे से ज़्यादा लोग तो प्रपोजल ही नहीं भेजेंगे. क्यों? अरे ऑडिट देना होता दे देता, ये प्रपोजल क्या होता है? एंड द एक्चुअल फैक्ट इज कि हमने कभी प्रपोजल बनाया ही नहीं, या हमको ठीक से प्रपोजल बनाना ही नहीं आता. सो व्हाट शुड वी डू? व्हाट शुड वी डू? हेल्प ऑफ एआई कैसे? हमें क्या करना चाहिए? अब काशी भैया ने क्या किया, वो तो अपने ऑफिस भी नहीं पहुंचे. उस बिजनेसमैन से बात करी, 2 मिनट अलग हुए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने खोला gemini.google.com. कोई भी खोल सकते हो आप, AI चैट जीपीटी भी खोल सकते हो, जेमिनी भी खोल सकते हो. और उन्होंने खोला और उसमें लिखा We are a practicing CA firm in Kolkata, having 3 partners and a rich experience of 30 years in internal audit of manufacturing companies. We have been approached by the management of a medium scale chemical manufacturing company for its internal audit. Please prepare a proposal for the same. Now see what happens. आप अपनी फर्म का नाम और वो भी दे सकते हैं. Now just look, understanding your needs, our expertise and approach, focus on tailored audit programs, partner-led approach, valuation, strong. Our proposed internal audit approach typically involves risk assessment, audit planning, our team, fees and timelines, next steps. Now, कितनी देर लगी इसको होने में? And can we actually make such a proposal? मुश्किल है, मुश्किल है. ऐसा नहीं है वी कैन नॉट मेक, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अच्छा, अगर हमने पहले 2-4 भेजे होंगे तब तो फिर भी बन जाएगा, और अगर नहीं भेजे होंगे तो वह स्टार्ट ही नहीं होगा. तो इन्होंने तो क्या किया, वही किया, नाम भी फर्म का दिया, ये दिया, और उसको भेज भी दिया बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट. या टू बी मोर प्रिसाइज, उसको कॉपी पेस्ट करके अपने पार्टनर को भेज दिया, इस प्रपोजल को जरा लेटर हेड पे बनाओ, प्रॉपर तरीके से करो और भेज दो क्लाइंट को. अभी तो आपने प्रपोजल भेजा है, अभी तो स्कोप नहीं तय हुआ, ये नहीं हुआ. सो नाउ जस्ट सी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू हाउ फास्ट एंड हाउ इजिली थिंग्स कैन बी डन. एंड ये तो अभी कुछ नहीं हुआ. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नॉर्मली मैनेजमेंट होगा, उसको वो लेटर आएगा इतना अच्छा सा बना हुआ, तो कुछ इंटरेस्ट जगेगा, बोले करके देखा जाए. तो वो क्या करेगा? He will say, now received your proposal, please come for a meeting, या let us meet.
अब ठीक मीटिंग थे, अब मीटिंग में क्या बात करेंगे? व्हाट विल यू डू? इसी से पूछते हैं। अच्छा, अब क्या है, मैं थोड़ा सा लेजी टाइप का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे इतना सारा टाइप करने का भी मन नहीं कर रहा, तो मैंने क्या किया, इसमें एक माइक का बटन लगा हुआ है, इसको यूज किया। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज बीन इम्प्रेस्ड बाय आवर प्रपोजल and has called us for a physical meeting. Please give me some talking points with special reference to inventory related problems in a chemical manufacturing industry. आ गया ये सब यहाँ? Now see what happens. It is given you, शुरू में आप क्या करें, reiterating your firm strength क्या करें, deep dive into उसने आपको, मैंने इसलिए ये इन्वेंट्री रिलेटेड कहा कि हो सकता है उस दौरान जब हमारी पहले मीटिंग हुई उसने कहा इन्वेंट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम है, या कोई और भी चीज़ कहता है, यू कुड हैव स्पेसिफाइड हियर एंड इट विल गिव यू दोज प्रॉब्लम्स ऑल्सो. Now, are you better prepared? हमारा काम आसान हुआ? Easy? Agreed? सबका जब तक पता नहीं चलेगा. अच्छा सर, अब आपके कुछ कंसर्न्स भी ठीक हुए. इट इज अ टूल विच वी आर यूजिंग. हम इस पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे. हमको हो सकता है इसमें से 6 चीजें अच्छी नहीं लगे तो हम नहीं करेंगे, बट हमको एक बेस, एक बैकग्राउंड, एक फील्ड तो प्रिपेयर हो जाएगी. नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ व्हाट हैपेंस? अब जब इतने प्रिपेयर होके आए, उस इंडस्ट्री के बारे में भी जानकारी करके आए, हमको और जानकारी चाहिए, हम पूछेंगे केमिकल इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. इट विल टेल मी दैट ऑल्सो. कुछ भी कर सकते हैं. तो नाउ अब क्या होगा इसके बाद? अब मैनेजमेंट से मीटिंग हो गई, तो अब मैनेजमेंट कहेगा ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे? Please prepare an engagement letter for the assignment as the management has agreed to assign us the job. तो it will give us a, अभी इसने वो नहीं किया है, अगर हम इसको और प्रॉपर कर दें कि एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, ये वो, तो इट विल प्रिपेयर दैट लेटर. नाउ व्हाट हैपेंस? क्या ये एंड हो गया? क्या इसका यूज इस असाइनमेंट में और भी कर सकते हैं हम? क्या? सर वो ठीक है, लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा रिपोर्ट में क्या लिख रहे हैं. आई एम सर टॉकिंग अबाउट, देखिए ये तो हम बिल भी बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो सब चीजें ठीक हैं, बट बेसिकली व्हाट अदर कंस्ट्रक्टिव थिंग्स यू कैन डू, व्हाट थिंग्स कैन यू डू टू एनहांस योर प्रैक्टिस, टू एक्सिलरेट योर प्रैक्टिस, टू हैव दैट एक्स्ट्रा थिंग इन योर प्रैक्टिस. यस. हम लोग सारी चीजें उसको देख सकते हैं एंड हमारी जो एनालिसिस होगी दैट विल बी मच बेटर. बट अगर इसको हम अपने सीए टर्म्स में करें तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? क्या जी? ऑडिट प्लान. हमको सबसे पहले अब रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स चाहिए. रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बनाएंगे तभी तो ऑडिट प्रोग्राम बनेगा. प्लीज प्रिपेयर अ रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स for the assignment with special emphasis on inventory control. Now just see.
बन गया? विल दिस हेल्प अस? तो अब नेक्स्ट स्टेप, सर देखिए फीस कुछ तो अपने पास भी रख लीजिए। नहीं, ये भी बताएगा। आप इससे पूछेंगे जो सवाल, हो सकता है मैंने ट्राई नहीं किया, कहीं ये पूछ के देख लें। तो वो तो सर आप इसको और फिगर्स देंगे, इसको और एरियाज देंगे, तब होगा। और फिर अगेन इसको हमें हेल्प के लिए यूज करना है। इसका हम ना टेस्ट ले रहे हैं, ना हम इसकी कैपेबिलिटी को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, वी आर ट्राइंग टू यूज एआई टू लिवरेज आवर प्रोफेशन। वी आर ट्राइंग टू यूज द मशीन टू मेक आवर वर्क इजी। जो चीज इसके बस में नहीं है उस तरफ हम कोशिश ही क्यों करें। नाउ नेक्स्ट जो हमको जरूरी चीज लगती है वो ऑडिट प्रोग्राम चाहिए। अब based on the risk control matrix, prepare a tabulated audit program. दिया नहीं है। Prepare a detailed audit program for the above assignment. Please prepare a detailed audit program for the above assignment. और जैसा कि कहा, थर्ड बटन को क्लिक करके रीजनरेट हो जाता है। इट्स नॉट गिविंग अ डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम, दे देता है उसको जरा सा थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से देके और वो करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगेन एक और बहुत जरूरी चीज जो कि दोनों सेशंस में इससे पहले यूज हुई, वो इसमें सबसे ज्यादा लगती है। हमने जो कॉन्सेप्ट सुना हुआ है गार्बेज इन गार्बेज आउट, हियर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर द कॉन्टेक्स्ट हैज टू बी सेट वेरी प्रिसाइसली। यहां आधी चीज या एम्बिगुअस चीज से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेरी as a chartered accountant, you have to tell the machine, act as a chartered accountant and advise me on this matter. Act as a teacher. Now I'll take another example, कैसे AI को हम यूज कर सकते हैं, कैसे वो बेनिफिट होता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो डेरिवेटिव्स होते हैं, कॉल पुट, ये समझना बहुत मुश्किल होता था। Now suppose I want to learn what is a call. Please explain what is a call and assume that I have no knowledge about it and use easy to understand language and easy to understand examples. Now it says टॉय के एग्जाम्पल से
इसने समझाया, एंड वेल आई विल नॉट गो थ्रू द होल थिंग, आई हैव ट्राइड इट आउट. अगर आप इसको करके देखिए एज अ exercise which you can do, you will see that it explains the concept in a very, very easy manner. Easy to learn manner में आपको पूरी चीज explain कर देगा. Have you ever heard of a term which is called TLDR? TLDR. टैली वैली से कुछ नहीं है, सिंपल. TLDR इज टू लॉन्ग डिड नॉट रीड. क्या होता है, ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए TLDR ही होते हैं. इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, हम पढ़ते नहीं. फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑडिट पे जाते हैं तो उससे पहले RBI का सर्कुलर कौन पढ़ता है, या इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट. हर साल टैक्स ऑडिट में चेंजेस हो जाते हैं, इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट आता है ऑन टैक्स ऑडिट. हु रीड्स इट? Hardly anybody. So what can you do? You can upload that document here and ask the tool to break it into a summarized form and bring out the important changes, important forms, important new amendments, etc. etc. इसी तरीके से हम लोग सब लोग YouTube पे वीडियोस देखते हैं. नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऑडिट ट्रेल का वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है, मुझे उसकी समरी चाहिए, कितनी देर लगेगी आपको? एक घंटा वीडियो में लगेगा, फिर उसको समराइज. और अगर मैं कहूं मुझे ये काम 5 मिनट में चाहिए, AI. कैसे AI? अगेन देयर इज अ टूल u-tldr.com, लेकिन ये फ्री नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वरना मैं आपको यहां दिखा भी देता. u-tldr.com करके है. कोई भी वीडियो का उसको URL दे दीजिए और विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स वो उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट दे देगा, उसकी पूरी समरी बना के दे देगा. और अगर आप उससे कोई क्वेश्चन भी करना चाहें रिगार्डिंग दैट वीडियो, यू कैन इजीली क्वेश्चन. आपको ये भी दे देगा समरी में कि 10 सेकंड के बाद ये हुआ, 1 मिनट के बाद ये बोला गया, 1.5 मिनट में ये हुआ, 2 मिनट में ये हुआ. तो इफ यू वांट टू गो एंड लिसन टू दैट पार्ट योरसेल्फ एंड विथ फुल सर्चिंग कैपेबिलिटी, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी वर्ड आप डाल दीजिए, उसको सर्च कर लीजिए, इट विल गिव यू दैट. सो इफ वी स्टार्ट यूजिंग दीज टूल्स, विल इट एक्चुअली हेल्प अस? करेंगे सब हेल्प? नाउ गिव मी 1 or 2 एग्जाम्पल्स जिसमें आप लोग यूज करते हो. अगेन आई कैन शो यू हाउ इट विल गिव अ रिप्लाई टू अ GST नोटिस, बट आई लीव दैट पार्ट बिकॉज देयर इज अ सेशन विच उमेश जी इज टेकिंग. ही विल प्रॉब्ली गो थ्रू दैट and explain it to you in detail. But अगर इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ जाए या डेट लेना तो खैर सिंपल सा काम है, बट हाउ विल यू यूज इट फॉर क्रिएटिंग अ रिप्लाई टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी? अगर आपके पास नोटिस आ जाए, क्या कर सकते हैं आप? फिर अपलोड करना तो ठीक है, आप उसको what you can do is first you upload that, analyze that, ask the AI tool to analyze that notice and give the points of concern raised by the assessing officer. पहले तो आप अच्छी तरह से समझो, फिर आप अपना कंटेंशन उसको देके कि I want you to contest या give a reply wherein we will dispute the above 3 facts on such and such grounds. आप अपने ग्राउंड दे सकते हैं या उसके ग्राउंड भी पहले देख सकते हैं. The big problem with such AI tools is these are generative AI tools. ये खुद भी रिप्लाई जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मतलब ये केस लॉ भी जनरेट कर देते हैं जो होता ही नहीं है. और ये एक बार नहीं, बहुत बार होता है. When you start searching it, you will find ये केस लॉ तो है ही नहीं.
सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई भी एआई से रिलेटेड चीज हम बिना पढ़े, बिना समझे, बिना अच्छी तरह से जाने नहीं कर सकते. सो इनकम टैक्स के नोटिस में हमें क्या करना है? अपलोड करना है. उसके बाद उसकी समरी बनवानी है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग सेम है कि नहीं. फिर अपना रिप्लाई हमें सोच लेना है, उससे भी रिप्लाई बनवा लेना है. फिर क्योंकि हो सकता है दो चीजों पे, दो पॉइंट पे हम कंटेस्ट ना करना चाह रहे हो, दो चीजों पे हम करना चाह रहे हो, फिर हम अपने ग्राउंड्स भी दे सकते हैं कि यूज दिस एज अ पैरामीटर एंड प्रिपेयर एन अप्रोप्रिएट रिप्लाई. अगेन अगर आप उससे केस लॉज भी मांगेंगे तो कहिएगा गिव केस लॉज विथ साइटेशन, जिससे कि आप उससे चेक कर पाओ कहां पे है, कहां से उठाया है उसने. नाउ इज इट क्लियर? इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब की कोशिश करेंगे. और इसमें दिस एग्जांपल यू कैन अगेन आस्क इट टू प्रिपेयर एन ऑडिट रिपोर्ट, यू कैन आस्क इट टू डू एन नंबर ऑफ थिंग्स कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम है, व्हाट कैन यू डू. नाउ सपोज यू वांट टू क्रिएट अ एक्सेल फाइल, डज दिस डू दैट ऑल्सो? करके देखा है. सपोज हमें चाहिए कि एक आपके पास क्लाइंट आता है, कहता है मुझे 25,000 रुपये महीने की या 25,000 रुपये साल की या 1,00,000 रुपये साल की SIP शुरू करनी है, या सपोज एक लोन लिया हुआ है, व्हाट वुड बी द इंस्टॉलमेंट्स. सो अब वो बैठ के कैलकुलेट और वो सब करने की जरूरत नहीं, आप AI को दीजिए, वो पूरा टेबुलेटेड बना के आपको एक्सेल फाइल दे देगा. सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच वी कैन यूज इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि AI का यूज मुश्किल है. सो I have another 4-5 minutes to talk about. Now, एक और चीज जो हमको कभी कभी दिक्कत देती है, जैसे यही क्लाइंट है. सपोज ये क्लाइंट मेरे से कहता है कि आपने जब ऑडिट स्टार्ट किया तो आपने कहा मुझे डाटा दे दो, आई विल परफॉर्म अ डाटा एनालिटिकल चेक ऑल्सो. तो वो कहेगा कि फर्स्ट प्रिपेयर अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. अब अगेन अगर हमने आज तक नहीं बनाया तो हमारे लिए प्रॉब्लम. So all I have to do is I have to ask it to prepare a non-disclosure agreement. अब उसके बाद the important part starts now. मैंने non-disclosure agreement बनाया, उसमें liability clause होगा. मैं अपनी liability limit करना चाहता हूं, तो I can tell that tool कि in the liability clause ensure that my liability is limited to the extent of fees received. My liability is limited to 2 months from the date of completion of audit. So I can customize the points according to my need. इसी तरीके से आजकल बहुत जरूरत पड़ती है सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स की. आप किसी से क्लाउड सर्विसेज लेते हो, किसी से डाटा बैकअप सर्विस लेते हो, तो उसका एक एग्रीमेंट हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि एग्रीमेंट भी करना चाहिए. क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट करना होगा तो बनाना हमें ही पड़ेगा. बट बाय यूजिंग दीज टूल्स वी कैन इजीली परफॉर्म these tasks कि हमको SLA बनाना है, हमको NDA बनाना है. It becomes very very easy. Now एक चीज और बस करके I'll wind up. टाइम हो गया है मेरा. I've just showing you the power of. अच्छा एक चीज और, 5 minutes. How many of you have used ICI GPT? What is the difference between ICI GPT and Chat GPT या Gemini या कोई और? ICI GPT में तो हमारे predefined या guidance notes हैं, या जो भी हमारे ICI द्वारा publish होते हैं, उन्हीं से reference लेके. Basically the difference between ICI GPT and Chat GPT or any other AI tool is कि the knowledge base from which the answer is being generated is limited in ICI GPT. ICI GPT में 18 sections में divided है. हमारी जितनी committees हैं उनका अपना एक material है, उसी से आंसर देगा. It will say retrieving information, जबकि यहाँ बाकी आप करेंगे it is saying generating information. So this is the difference between ICI GPT and
the institute on its part is trying and keeps on updating that material at a very, very regular basis. So you will probably get a better reply if we use ICI GPT. अभी उसकी लिमिटेशन सिर्फ इतनी है कि वो 5 prompts तक फ्री में अलाउ करता है. अदरवाइज इफ यू हैव अ पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ चैट जीपीटी देन the use can be unlimited. हम अपनी भी तो पर्सनल जीपीटीज भी बना सकते हाँ, हैं. वो अपनी पर्सनल जीपीटी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट अगेन वो थोड़ा सा और एडवांस्ड लेवल है. इफ वी कैन डू दैट, नथिंग लाइक इट, धीरे धीरे एआई में आगे हम बढ़ के वो बना सकते हैं. Sir, I have one question, sir. Sir, I have one question, sir. हाँ, श्योर. Actually, chat GPT, right, sir? एक मन में fear, माने, I don't know. Suppose there are various kind of agreement we have, right? तो हम लोग एग्रीमेंट को यहाँ अपलोड करते हैं. हम इनसे कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं कि इस एग्रीमेंट को देख के आप ये बताइए कि इस क्लॉज में पेनल्टी क्लॉज कहाँ पर है. सपोज वी हैव 10 एग्रीमेंट्स, वी हैव अपलोडेड 10 एग्रीमेंट्स. तो डेटा शेयर का मन में एक ये रहता है कि कंपनी के पूरे एग्रीमेंट्स एआई में शेयर हो रहे हैं. पॉइंट नंबर 1. हम अनलिस्टेड कंपनी का लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, रिजल्ट्स हमको पब्लिश करने हैं. आई हैव गॉट द लेजर डम एंड ट्रायल बैलेंस एंड ऑल, हम यहाँ पर लोड करते हैं. सो हाउ दिस डेटा शेयरिंग, दैट इज इन क्वेश्चन इन आवर माइंड एक्चुअली. देखिए भैया, ये डेटा शेयरिंग इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन अ कंसर्न. इसमें कोई, लेकिन आई आस्क यू अ डिफरेंट क्वेश्चन. वो डेटा आपके पास आया कहाँ से? वो डेटा आपके पास 80% जीमेल के थ्रू आया होगा. अब वो जीमेल से आया या आपने गूगल ड्राइव पे शेयर किया, तो एक बार तो वो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं होता ही है. आपने अगर जीमेल से मान लीजिए गूगल ड्राइव पे मंगाया या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के किसी उससे मंगाया, तो वहां तो शेयर हो ही गया. जीमेल से आया तो जीमेल के पास शेयरिंग टू अस. वी हैव statutory auditor of a company, they have given the agreement they have made with us actually. So they have the agreement with us. But आप कभी इस AI टूल से, इसमें एक जगह है जहाँ के आप जाके टिक कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है माई डाटा शुड नॉट बी शेयर्ड फॉर इवन एजुकेशनल पर्पसेस. okay. बट अगेन यू विल हैव टू रिलाई ऑन द कंपनी. ओपन एआई की बात आपको माननी ही पड़ेगी. उसने अगर कहा है कि हम नहीं शेयर कर रहे तो यू विल हैव टू बिलीव दैट. ये चाइना ने डीप सीक निकाला, उसका एप्रीहेंशन ही यही है कि द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट guarantee or assurance which they are giving कि we will not share data, how strong is that? Correct. So data sharing, data privacy is a big issue. इसके लिए कहते ये हैं कि आपको डाटा में जो कंपनी का नाम या कोई की फील्ड छोड़ के आप शेयर करो जिससे कि वो आइडेंटिफाइबल ना हो और उसका मिसयूज ना हो सके. जैसे पैन नंबर है तो पैन नंबर वाली फील्ड मत शेयर करो. Otherwise, you will have to rely on the non-disclosure agreements only. Chat GPT में आया, I go to explore GPTs and Dale होगा, Dale. मैंने इससे एक इमेज क्रिएट करने को कही. प्रिपेयर एन इमेज ऑफ अ सीए कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड इन पार्क होटल कैलकाटा एंड बीइंग अटेंडेड बाय अ मिक्स्ड एज ग्रुप ऑडियंस ऑफ अबाउट 150 पीपल.
ये कोई हमारे सीए प्रोफेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट जस्ट टू शो यू द पावर ऑफ एआई. नाउ यू कैन सी एक इमेज क्रिएट. अब आप इसमें ये कहिए इतनी फीमेल्स हैं, इतने मेल हैं, वो भी कर देगा. आप इससे ये कहिए एज ग्रुप डिफरेंट है, तो उसी हिसाब से वो भी चेंज कर देगा. तो दिस इज बेसिकली हाउ एआई वर्क्स बेस्ड ऑन आवर प्रॉम्प्ट. एंड एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एआई में, प्रॉम्प्टिंग शुड बी अप्रोप्रिएट. प्रॉम्प्ट छोटे नहीं होने चाहिए. व्हाट इज एक्चुअली सेड इज कि मिनिमम 5 लाइन का प्रॉम्प्ट होना चाहिए. आप जितनी सरल भाषा में, जितनी इजी भाषा में उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि दिस इज माय आउटकम, उतना ही अच्छा आउटकम आएगा. अगर हमने एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी तो वो उसको अजम्पशंस उसके सारे अपने हो जाएं. अगर आपने उसको ब्रेक ब्रेक करके किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई, आपने मान लीजिए अभी गाइडेंस नोट ही दिया, इसकी समरी बनाओ, आप उससे ये भी कह सकते हैं इसके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना के दे दो, वो भी बना के दे देगा. Give, so all that can be done. Well, friends, with this, I thank you for a patient hearing. And if there are any questions, I'm willing to take them. And I hope this session was useful. Thank you.